Ahmed, and I am a PG trainee or two from Chaudhry Parvez Ellai Institute of Cardiology, Multan. The topic I was assigned today was cardiovascular monitoring. It is a bit difficult and lengthy topic. However, I have tried to cover all the important points with the monitoring. It would be divided into the blood pressure monitoring, invasive and non-invasive, and the CVP and the pulmonary art, pulmonary artery catheter and ECG. These are the four segments that I would be covering. Arterial blood pressure monitoring. Arterial blood pressure is the most important determinant of left ventricular afterload and therefore workload of the heart. The peak left ventricular and systolic pressure in the absence of aortic valve stenosis approximates the systolic arterial blood pressure. The lowest arterial pressure during diastolic relaxation is the diastolic blood pressure. The pulse pressure is the difference between the systolic and the diastolic pressures. Mean arterial pressure is the time weighted average of arterial pressures during a pulse cycle. So systolic blood pressure plus 2 into diastolic blood pressure, the whole divided over 3. As the pulse moves peripherally through the arterial tree, the wave reflection distorts the pressure waveform, leading to an exaggeration of systolic and pulse pressures. यानी जितना डिस्टली हम जो पेरिफेरली हम हार्ट से मूव करते जाएंगे उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन इसमें आती जाएगी. इसमें साथ हमारे पास जो है इसमें radial, for example, the radial artery systolic pressure is usually greater than the aortic systolic pressure because it is more distal in location. So the radial artery systolic pressure often underestimate more central pressures following the hypothermic cardiopulmonary bypass because of the changes in the hand vascular resistance. So vasodilating drugs may accentuate this discrepancy. The level of the sampling site relative to the heart affects the measurement of the blood pressure because of the effect of gravity. यानी अगर आपने जो आपका जो बीपी कफ है या जो आपका ट्रांसड्यूसर है दैट इज नॉट एट द लेवल ऑफ द हार्ट तो विद एवरी centimeter of rise and fall there would be a 0.74 millimeter of mercury change in the blood pressure. So significant difference in the blood pressure measurements among the different extremities in the case of peripheral vascular disease. So in that case the greater value should be used. Then there is the non-invasive arterial blood pressure monitoring. This is the basic standard, and we commonly use it in our ICU and OT setup. So the indication for it is the use of any anesthetic is an indication for the arterial blood pressure measurement. And the contraindication for it is a technique that relies on a blood pressure cuff should be best be avoided in extremities with vascular abnormalities. For example, if they have arteriovenous fistulas for uh, as in the dialysis, the patients who are on dialysis, they have the arteriovenous fistulas. If you have placed an IV line on the same arm, you should not place the BP cuff on that arm. It may, however, it may also prove impossible to monitor the blood pressure in patients with severe burns because there's no accessible site for the non-invasive monitoring. So there are the various techniques and procedures, and they have their own complications. The initial two techniques that I would discuss are the palpation and the Doppler probe. These both इसमें फर्क सिर्फ ये है कि palpation में जो है ना the doctor or the patient the person who is using the technique is basically using his finger as a sensor, and in the Doppler probe it is replaced by a Doppler probe. So both the above measure the systolic blood pressure only. So the variation of the
Doppler probe is a piezoelectric crystal to detect lateral arterial wall movement, detecting both systolic and diastolic blood pressure. Piezoelectric effect is the ability of certain materials to generate electrical charge in response to applied mechanical stress. Right now, there are two other methods: the auscultation and the oscillometry. So in the auscultation, it is the usual method that is used by us in an aneroid or a sphygmomanometer, and inflation of the blood pressure cuff to a pressure between systolic and diastolic pressures will partially collapse an underlying artery, producing turbulent flows and the characteristic Kortkov sounds. So these sounds are audible through the stethoscope placed under or just distal to the distal third of the blood pressure cuff. The clinician measures the pressure with an aneroid or mercury manometer. So Kortokov sounds are often difficult to auscultate in noisy patient care environments and during episodes of hypotension or marked peripheral vasoconstriction. In these situations, the subsonic frequencies associated with the sound can be detected by a microphone and amplified to indicate systolic and diastolic pressures. So the next is the oscillometry, which is the most important because जो हम अपने monitors और ये जो even जो electronic blood pressure apparatus है वो जो हम use करते हैं वो उसमें oscillometry ही जो है ना वो use हो रही होती है. Oscillometric devices are the preferred non-invasive blood pressure monitors in the USA and worldwide. Arterial pulsations cause oscillations in pulse pressure. These oscillations are small if the cuff is inflated above the systolic pressure. And when the cuff pressure decreases to the systolic pressure, the pulsations are transmitted to the entire cuff, and the oscillations markedly increase, and they keep on increasing, and then the maximal oscillation occurs at the mean arterial pressure, after which the oscillations decrease. तो mercury और aneroid manometers में ना ये inaccurate और unreliable होते हैं. Automated blood pressure monitors electronically measure the pressures at which the oscillation amplitude changes. अच्छा इसमें मैंने एक जगह पढ़ा था कि जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है ना ये पहले इसको डिटेक्ट करती हैं और उसके बाद उसके थ्रू जो है ना उसको कंप्यूट करती हैं कि इसमें डायस्टोलिक कितना है और सिस्टोलिक जो है वो कितना है. A microprocessor derives the systolic mean and diastolic pressures using an algorithm. Oscillometric monitors should not be used on patients on cardiopulmonary bypass. अच्छा जी इसकी पांचवी टाइप है जी arterial tonometry. So it senses the pressure required to partially flatten a superficial artery that is supported by a bony structure, as in the radial artery. So नीड्स इसके इसके जो इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इट नीड्स फ्रीक्वेंट कैलिब्रेशन एंड इट इज सेंसिटिव टू द मूवमेंट आर्टिफैक्ट. अच्छा अब जिन जैसे ऑसिलोमेट्री में ऑस्कल्टेशन में और पल्पेशन में जिन में जो है ये और जो हमारा जो डॉपलर प्रोब वाला था उसमें जो जिस जिस मेथड में भी ब्लड प्रेशर कफ जो है वो इन्वॉल्व है उसमें द ब्लड pressure the cuff's bladder should extend at least halfway around the extremity and the width of the cuff should be 20% to 50% greater than the diameter of the extremity. यानी आप मतलब in an obese patient or in a child you have to make sure that the cuff is of adequate size. अब इसमें आगे इसकी सिग्निफिकेंस एक जो नैरोअर कफ और वाइडर कफ की है वो ये है कि नैरोअर कफ लीड्स टू सिस्टोलिक ओवर एस्टिमेशन एंड द वाइडर कफ लीड्स टू systolic underestimation. However, the for the same cuff size change, same percentage cuff size change, तो उसमें जो नैरोअर कफ होगा उसमें जो ओवर एस्टिमेशन है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू द वाइडर कफ है जो सिस्टोलिक अंडर एस्टिमेशन है वो relatively less significant.
अच्छा जी, अब आगे हम इन्वेसिव आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। अब इंडिकेशंस इसकी क्या है? इंड्यूस्ड यानी हमने खुद इंड्यूस किया हुआ है करंट और एंटिसिपेटेड हाइपोटेंशन और वाइड ब्लड प्रेशर डेविएशंस, एंड ऑर्गन डिजीज है किसी पेशेंट को, प्लान्ड फार्माकोलॉजिक और मैकेनिकल कार्डियोवास्कुलर मैनिपुलेशन है, या रिपीटेड ब्लड सैम्पलिंग करनी है, एबीजीज लेनी है, या उस उससे रिलेटेड मतलब आपको रिपीटेड ब्लड सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, फेलियर ऑफ इनडायरेक्ट आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेजरमेंट। अब इसकी हम इसको इम्पोर्टेंट जो है इसकी चीज़ें देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या है? रेडियल आर्टरी है। अच्छा, रेडियल आर्टरी के लिए हमें एलन टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है, और आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद इट। यू occlude the ulnar artery and you occlude both the arteries and then you release the radial artery, and वो जो refill होता है वो 5 seconds में हो जाए, तो ठीक है। अगर 5 to 10 seconds में हो तो इसका मतलब है कि वो फ्लो जो है वो impede हो रहा है। तो अब इसमें कोलैटरल्स नहीं बने हुए, ठीक है। और अगर रेडियल आर्टरी अब आपने कैथेटराइज की तो फिर कोलैटरल्स के थ्रू, और उधर को मतलब थ्रोम्बोसिस हो गया है, कोई मसला हो गया, तो फिर वो रीफिल जो है ना उसका वो कोलैटरल्स के थ्रू, अल्नर के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि वो 5% ऑफ द पीपल उनमें जो पामर आर्च है उसमें वो ज्वाइन नहीं कर रहे होते। अब ऑल्टरनेटिव साइट्स आपके पास क्या है? अल्नर, अल्नर आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। अब ब्रेकियल आर्टरी में देयर आर नो कोलैटरल्स बट इट इज कंसिडर्ड सेफ। इसके डिसएडवांटेज ये है कि किंकिंग ऑफ कैथेटर इज अ मेजर इशू। इसके अलावा डोर्सालिस पीडस है, पोस्टीरियर टिबियल है, लेकिन यहाँ पे जो आपको जो अ, इसमें आपको जो मिलता है, इसका जो ग्राफ हो उसमें टर्बुलेंस जो है वो ज्यादा होती है। अच्छा, एक्सिलरी आर्टरी है, उसमें मसला ये है कि उधर आप कैथेटर तो प्लेस कर देते हैं, लेकिन वो जो सारे साथ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं और उधर से जो एम्बोलाइजेशन के चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं। तो यूजुअली द रेडियल आर्टीरियल लाइन इज प्लेस्ड बाय द सेल्डिंगर टेक्निक। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हेमाटोमा, ब्लीडिंग particularly with catheter tubing, catheter tubing disconnections, vasospasm, arterial thrombosis। वेजोस्पैसम इज वेरी फ्रीक्वेंट, यानी अगर आपने एक दफा ट्राई किया है और आपने हिट कर लिया है और वो मतलब आपसे कैथेटर पास नहीं हुआ, तो फिर जब द नेक्स्ट टाइम यू वुड ट्राई वो उसमें जो है ना उसमें स्पैसम डेवलप हो चुका होता है, तो इट्स द सेकंड टाइम इट इज हार्डर टू सक्सेसफुली पास द आर्टीरियल कैनुला। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलाइजेशन ऑफ एयर बबल्स और थ्रोम्बाई, pseudoaneurysm formation, necrosis of the skin overlying the catheter, nerve damage, infection, necrosis of the extremity or digits, unintentional intra-arterial drug injection। जैसे मुझे अब इंटरनेशनली तो मुझे नहीं पता कि वो प्रैक्टिस किस तरह से, लेकिन जैसे हम अपने हॉस्पिटल में जो है वो 18 गेज 20 गेज का कैनुला पास करते हैं, जो यूजुअल आईवी कैनुला होता है, तो उसके ऊपर वो जो पोर्ट होती है, अब हम यहाँ पे उसको उसके ऊपर जो स्टेराइल ड्रेसिंग करते हैं, फिर उसमें जो आईवी के जिस जैसे 18 गेज कैनुला को हम आईवी एक्सेस के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो उसको उसके पोर्ट को हम जो है वो ओपन रखते हैं, वहाँ पे उसके ऊपर स्टेराइल ड्रेसिंग में होल कर देते हैं ताकि वहां से हम एक्सेस कर सकें। और इसको जो है ना हम इसके ऊपर स्टेराइल ड्रेसिंग को वो मतलब इंटैक्ट ही उसके ऊपर जो है ना वो प्लेस कर देते हैं, ताकि वो चांस कि वहाँ पे इंट्रा आर्टेरियल ड्रग इंजेक्शन को गलती से भी दे दे तो वो ना हो, लेकिन फिर भी रिस्क तो है। अब factors associated with increased complication rate, prolonged cannulation, hyperlipidemia, repeated insertion attempts, अच्छा, female gender, extracorporeal circulation, use of large catheters and small vessels, and use of vasopressors। अच्छा, zeroing and leveling of the transducer are important। zeroing to air, उसमें आप वो ट्रांसड्यूसर को जो है वो जीरो करना, अब उसका वो टेक्निक है, बहरहाल उसको वो जो पोर्ट होती है उसे आप क्लोज कर देते हैं और इट इज ओपन टू एयर, फिर आप वो ट्रांसड्यूसर की कैलिब्रेशन वो जो है उसको जीरो करने के लिए जो है उसे मॉनिटर पे या जो ट्रांसड्यूसर के ऊपर वो जो साथ उसके असेंबली होती है उसके ऊपर आप जीरो प्रेस करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। लेवलिंग
in reference to the patient's body, 5 centimeters below the sternal border in the fourth intercostal space. This is the ideal placement. अब आगे जी ECG पे. So lead selection determines the diagnostic sensitivity of the ECG. The normal QRS lasts approximately 120 milliseconds, can be prolonged in cardiomyopathies and heart failure. Prolongation of the QT interval due to electrolyte imbalance or drug effects can potentially lead to life-threatening arrhythmias. Lead to may largest P wave voltages of any surface lead, largest P wave voltages of any surface lead, detection of arrhythmias and epithelial wall ischemia. ये चीजें हम इसमें जो है ना इसमें significant. Lead 5 जो है V5 वो lies over the fifth intercostal space in the anterior axillary line, detects anterior and lateral wall ischemia. अब arterial pressure tracing में हम अगर देखें तो this is a normal arterial pressure tracing graph. Systolic इसमें अगर ये ग्राफ अगर आपको नजर आ रहा है इसमें ये जो सेंटर वाला ग्राफ में जो सेंटर वाला जो पल्स है इसके ऊपर जो है सिस्टोलिक अपस्ट्रोक, सिस्टोलिक पीक प्रेशर, फिर 3 पे है सिस्टोलिक डिक्लाइन, फिर 4 signifies the diacrotic, 4 is labeled as a diacrotic notch, फिर 5 is a diastolic runoff, and 6 is the end diastolic pressure. अब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पे वापस जाते हैं तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर वेव फॉर्म एब्नॉर्मेलिटीज. तो एओर्टिक स्टेनोसिस में पल्सस पार्वस, नैरो पल्स प्रेशर, पल्सस टार्डस, डिलेड अपस्ट्रोक, एओर्टिक रिगर्ज, और उसमें डबल पीक आई. अच्छा, बिस्फेरेंस पल्स, वाइड पल्स प्रेशर, और हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में स्पाइक एंड डोम पैटर्न, और सिस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में पल्सस ऑल्टरनेंस, कार्डिक टेम्पोरान में पल्सस पैराडॉक्सस. अब ये जो बी इसमें जो अब इस पिक्चर में जो अब जो ए है इसमें नॉर्मल आर्टीरियल एंड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स. ठीक है, अब आगे इसमें हमने सिर्फ अभी जो है ना आर्टीरियल प्रेशर्स को अब आप कंसीडर करें. इन एओर्टिक स्टेनोसिस द arterial waveform is distorted and demonstrates a slurred upstroke and delayed systolic peak. फिर सी में एओर्टिक रिगर्ज में ये देखिए ये डबल पीक्स आ रही हैं और वाइड पल्स प्रेशर. फिर डी में the arterial pressure waveform in hypertrophic cardiomyopathy shows a peculiar spike and dome pattern. तो ये कुछ significant arterial graph की जो pictures जो वो मैं आपको दिखाऊंगा. अब central venous pressure monitoring. Central vein is catheterized for various purposes. Measurement of CVP is often necessary in hemodynamically unstable and patients undergoing major surgery. Right IJV is the most commonly catheterized central vein. Others are left IJV, right and left subclavian, femoral, external jugulars, and axillary artery. Most commonly used size is 7 French, 20 centimeter catheter with a 18 gauge introducer needle and guide wire. अब indications for central venous cannulation. So central venous pressure monitoring, pulmonary artery catheterization and monitoring, transvenous cardiac pacing, temporary hemodialysis, drug administration, concentrated vasoactive drugs जो हैं उनके administration के लिए, और उसके अलावा caustic drugs के लिए, और hyper alimentation, chemotherapy, agents relating to the peripheral veins, ये हैं जो caustic agents हैं. Prolonged antibiotic therapy, for example in endocarditis, so rapid infusions of fluids via large cannulas, trauma, major surgery, aspiration of air emboli, or inadequate peripheral intravenous access, sampling site for repeated blood testing. Complications of CVP: mechanical vascular injury, arterial या venous दोनों ही हो सकती हैं. Hemothorax, cardiac tamponade, respiratory compromise, airway compression from hematoma, tracheal laryngeal injury, pneumothorax, nerve injury,
arrhythmias, subcutaneous या mediastinal emphysema, thromboembolic events, venous thrombosis, pulmonary embolism, arterial thrombosis and embolism, catheter or guide wire embolism, or infection of the insertion site, or catheter infection, या bloodstream infection, endocarditis, or even the guide wire can cause damage to the heart and the pericardium or mediastinum. So central venous pressure waveform components: A wave, end diastole atrial contraction. C wave is an early systole, isovolumetric, and signifies the isovolumetric ventricular contraction, tricuspid motion towards the right atrium. Or V wave is the late systole, systolic filling of the atrium when blood uh, is rushing into the atrium वो जो return आ रहा है. H wave is mid to late diastole. It is a diastolic plateau. X descent is a mid systole, atrial relaxation, descent of the base, systolic collapse. Y descent, early diastole, early ventricular filling, and diastolic collapse. ये है जी, ये A जो है, और ये बेसिकली इसका ग्राफ है, ये नीचे ब्लू में जो आपको नजर आ रहा है CVP, और ये साथ उसकी कोरिलेशन है विद द ECG एंड आर्टेरियल. अब जहाँ पे सिस्टली है उसके साथ सी, और फिर ये सी पे देखिए, अब हमारे पास सी पे था, सी वेव इज अर्ली सिस्टली, ठीक है, आइसोवेलोमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और ट्राइकस्पिड मोशन टुवर्ड्स द राइट एट्रियम, यानी वो अपवर्ड बल्ज जो, और the JVP, jugular venous pressure, is a manometer of pressure in the right atrium. When pressure in the atrium is high, the JVP will be raised, and when the right atrial pressure is low, the JVP will drop. Features of the JVP: a venous pulse is not usually. अच्छा खैर इसको JVP को भी आ जाते हैं जी. Pulmonary artery catheter. Introduction: pulmonary artery catheters, also called as Swan-Ganz catheter, are used for evaluation of a range of conditions. Although their routine use is not common, they are still occasionally placed for management of critically ill patients. Physiological measurements: direct measurements of the following can be obtained from an accurately placed pulmonary artery catheter: central venous pressure, right-sided intracardiac pressures, pulmonary artery pressure, pulmonary artery occlusion pressure, cardiac output, mixed venous oxygen saturation. Indirect measurements that are possible: systemic vascular resistance, pulmonary vascular resistance, cardiac index, stroke volume index, oxygen delivery, oxygen uptake. Indications: differentiation among causes of shock, differentiation between mechanisms of pulmonary edema, evaluation of pulmonary hypertension, diagnosis of pericardial tamponade, diagnosis of right to left intracardiac shunts, and unexplained dyspnea. Therapeutic: management of the perioperative patients with unstable cardiac status, management of complicated myocardial infarction, management of patients following cardiac surgery or high risk surgery, management of severe preeclampsia, guide to pharmacologic therapy, and burns, renal failure, heart failure, sepsis, decompensated cirrhosis, assess response to pulmonary hypertension specific therapy. इसका मेजर जो रोल है ना, वो है आपकी जो गोल डायरेक्टेड थेरेपी है ना, उसमें यानी आप
इंट्राऑपरेटिवली कार्डिक कॉम्प्रोमाइज है, उसमें आप कितना वॉल्यूम देना है, आइनोट्रॉप्स किस तरह से एडजस्ट करने हैं, उस उन चीज़ों के लिए जो है ना इसकी ये मेजर इंडिकेशन जो है ना वो है. Contraindications, absolute contraindication is infection at the insertion site, presence of right ventricular assist device, insertion during cardiopulmonary bypass, lack of consent. और relative contraindications जो हैं वो है coagulopathy, thrombocytopenia, electrolyte disturbances and severe pulmonary hypertension. Making a decision to place a pulmonary artery catheter in critically ill or perioperative patients, decision to place a pulmonary artery catheter should be based on patient's hemodynamic status or diagnosis that cannot be answered satisfactorily by clinical or non-invasive assessment. आगे इसकी प्रेपरेशन और वो इक्विपमेंट्स आ जाती हैं. अब ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ये जो इमेज है ना ये इम्पोर्टेंट है. पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, इसके इसके पोर्ट्स होते हैं, 4 पोर्ट्स हैं. एक बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट है, ये वाला, ठीक है. दिस इज द बैलून इन्फ्लेशन पोर्ट. दिस इज द आरवी इन्फ्यूजन पेसिंग पोर्ट. फिर पीए डिस्टल पोर्ट. फिर ये 5 पोर्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल इन्फ्यूजन पोर्ट और थर्मिस्टर कनेक्टर. अब aseptic precaution should be undertaken. Local infiltration should be done. Check the balloon integrity by inflating 1.5 ml of air. Check lumen's patency by flushing with saline. Cover catheter with sterile sleeve provided. Cannulate vein with Seldinger technique. Place the sheath. Pass the catheter through the sheath with tip curved towards the heart. Once the tip of catheter passes through the introducer sheath, inflate the balloon at the level of the right ventricle. The progress of the catheter through the right atrium into the and ventricle into the pulmonary artery and wedge position can be monitored by changes in the pressure trace. After acquiring wedge pressure, deflate the balloon. When advancing the catheter, always inflate the tip. When withdrawing the catheter, always deflate. Once in the pulmonary artery, never inflate against resistance. Risk of pulmonary artery rupture. सर इसके बाद हमारे पास जो है ना सर, इसमें कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग के जो हमारे पास जो टेक्निक्स हैं उनके कुछ के जो सिग्निफिकेंट है हमारे लिए, वो उनके नेम्स हैं. एक तो थर्मोडाइल्यूशन टेक्निक है, और उसके अलावा हमारे पास डाई डाइल्यूशन है, जिसमें पिको और लिडको आ जाते हैं. पल्स कंट्रोल डिवाइसेस हैं, एसोफेजियल डॉपलर है, और थोरेसिक बायो इम्पेडेंस है. तो सर this is pretty much it. So, sir, Dr. Amir, sir, thank you for giving me the chance to present this here. सर इसमें कुछ अगर चीज़ें जो हैं वो जो मैं इसमें कवर नहीं कर पाया, काइंडली अगर आप. नहीं, गुड प्रेजेंटेशन बख्श, और आपने विद इन टाइम इसको काफ़ी कंसाइज तरीके से किया प्रेजेंट. दैट्स गुड वन. और इसमें बाकी जो क्वेश्चंस हैं और कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं वो डेफिनेटली ये फोरम इसीलिए है तो वो उसको कवर अप कर ले. तो अभी जो है वो डॉक्टर अरसलान फर्दर इसको देखता है.
अरसलान भाई सर म्यूट है, जी अरसलान, अनम्यूट। जी अरसलान देख। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी। सर, अनम्यूट हो गया। नहीं सर, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। थोड़ा टाइम में प्रिपेयर करने का टाइम भी डॉक्टर बख्श के पास काफ़ी कम था, काफ़ी ड्यूटीज भी बिजी रह गई हमारे पिछले हफ्ते। तो काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं, अच्छी कवर हो गई हैं। कुछ चीज़ें डेफिनेटली इस लेवल पे अभी नहीं क्लियर होती, जैसे कि कार्डिक आउटपुट मॉनिटरिंग है। तो उसमें कई चीज़ें बता, हम जो काम रूटीन में नहीं कर रहे तो उन पे हमारी अपनी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर वाला वाली चीज़ भी, मतलब हम में से मैक्सिमम लोगों ने शायद कैथेटर कभी देखा भी नहीं होगा। हमारे अपने डिपार्टमेंट में भी शायद एक आध पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर है जो मैंने वंस निकलवा के एक दफा उस पे सारी मतलब प्रैक्टिकली चीजें देखी थी कि वो कैसे यूज करते हैं। वो सब प्रैक्टिकली हम यूज नहीं करते, तो उन चीजों में हमारी मिसिंग ऑब्वियसली, हम काफी चीजों में मिसिंग होते हैं। बाकी मेरे ख्याल में सर साकिब ने भी रेज हैंड किया हुआ है, तो सर साकिब विल फर्दर इलेबोरेट कि कोई चीज मजीद मिस हो गई हो। मिस को सर अस्सलाम वालेकुम। Walaikum. And, good evening or good night to everybody, and excellent presentation by Dr. Baksh. And slightly he was hesitant to present the details of cardiac output monitoring, and that was not required. I think it is for the audience who are postgraduate trainees, and the cardiac output is not being routinely monitored in our setups, except maybe it is being done at cardiovascular surgery setups. अच्छा, इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है presence of the anesthetist with the patient. सबसे important monitoring of any type of monitoring. Hemodynamic monitoring जो है वो सबसे important है, और दूसरा जो है respiratory monitoring है। तो आज जो हमारा जो टॉपिक था वो कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग था। और देखें जी, अगर रेस्पिरेशन डिस्टर्ब होगी ना, पहले रेस्पिरेशन जाएगी, उसके बाद कार्डिक जाएगा, ठीक है। और अगर कार्डिक जाएगा तो उसको सिस्टम को बहाल करना, अगर कार्डिक अरेस्ट हुआ है तो वो ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और अगर रेस्पिरेशन डिप्रेस हो रही है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। हाइपोक्सिया हो रहा है, कोई डिस्कनेक्शन हुआ है, आप। लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका एनेस्थीसिया असिस्टेंट, ठीक है। क्योंकि आपने चाय भी पीनी है, आपने जाके आराम भी करना है, बैठना भी है, आपने जो है वो वॉशरूम भी अटेंड करना है, तो आपका जो एनेस्थीसिया असिस्टेंट है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन है। जो हमारे सरकारी सेटअप्स हैं उनमें तो आपके पास ट्रेंड लोग होते हैं सारे, वो। जब आप जाते हैं ना प्राइवेट सेटअप में, तो वहाँ सम टाइम्स आपकी ट्यूनिंग नहीं हुई होती। नया बंदा आपको मिलता है, उसको पता नहीं, अभी वो बोस्ट कर रहा होता है कि आई एम वेरी मच एक्सपर्ट और ये वो, और सम टाइम्स उसको सिंपल चीज़ों का नहीं पता होता है, वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि मॉनिटर्स जो हैं उनके जो रीड आउट्स हैं उनको डिटेक्ट करना, उनको नॉर्मल देखना, और उसमें जो एबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट करके उस पे क्विकली और स्विफ्टली उससे रिस्पॉन्ड करना। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, कि आप जो भी एबनॉर्मलिटी है उसको कितनी जल्दी पिक करते हैं और कितनी जल्दी आप उसको ट्रीट करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो रिवर्सिबिलिटी है उसकी चांसेस हैं वो कम होते जाएंगे। फिर वही बात आ जाएगी कि आप अगर जितना पेशेंट के साथ रहेंगे आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एनेस्थीसिया टिल द एंड ऑफ द एनेस्थीसिया, उतना आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, उतना आप जल्दी पिक करेंगे। और आपका जो भी असिस्टेंट है उसकी रोजाना एजुकेशन करते रहें। अगर आपके साथ वो इधर है तो एजुकेशन ऑफ द असिस्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको छोटी छोटी चीजें बताते रहा करें
हम भी बताते रहते हैं कि जी ईसीजी देखो ये नॉर्मल पैटर्न है, इसमें जब ये फास्ट हो जाए तो टैकीकार्डिया होता है, जब स्लो हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया है, और इसमें अब नॉर्मल वेव फॉर्म आए, टॉपिक्स आना शुरू हो गई हैं, और फ्लैट लाइन आई तो देखो कोई जो है वो, उनको चीज़ों को पता होता है बहुत सारी चीज़ें, तो आपने उनको बताना है कि जब ये चीज़ें आए तो वो। अच्छा जी, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो है हैंड ऑन दी पल्स। जी ठीक है, हैंड ऑन दी पल्स रेडियल आर्टरी पे। और एक हम जो करते थे जब बैग दबा रहे होते थे ना, तो उस वक्त तो, अभी तो वेंटिलेटर भी हैं और अब वेंटिलेटर पे हम डाल देते हैं, लेकिन अभी भी लोग वेंटिलेटर पे डालने से डरते हैं कि जी वेंटिलेटर डिस्कनेक्शन होगा तो पता नहीं चलेगा और पेशेंट जो है ना मे बी हाइपोक्सिया हो जाए। तो जब वेंटिलेटर पे डाला हुआ, जब हम खुद बैग दबा रहे होते हैं, तो एक है ये टेम्पोरल जो पल्स है, ये ट्रैगर है ना, जो ईयर का ट्रैगस है, इसके सर। साथ ही ट्रैगस, हाँ जी, इसके साथ ही जो है ना आरिकुलो टेम्पोरल ये जो पल्स है, इसको अगर आप देखें ना, तो ये अपनी भी आप फील कर सकते हैं, यहाँ पे रख के हम ये पल्स फील करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप हेड एंड पे होते हैं ना, तो रेडियल आपसे दूर हो जाती है, करोटेड पे आप उंगली रखना नहीं चाहते कि वो अंदर आपका हाथ जाएगा, तो यहाँ पे आप ट्रैगस के साथ हाथ रख लेते हैं, तो ये पल्स फील करते रहते हैं। ठीक, बच्चों में ये होता है कि हम कार्डियक के ऊपर स्टेथ रख लेते हैं। ठीक है, स्टेथ ऊपर टेप के साथ वो फिट कर देते हैं एपेक्स के ऊपर, और या जो है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, और उसके साथ हम ब्रीदिंग भी मॉनिटर करते रहते हैं, और साथ ही जो है ना हार्ट बीट भी आती रहती है। ये तो वो है जो सिंपल, बिल्कुल सिंपल जो चीजें हैं ना, कि मतलब कोई वो नहीं है। अब बहुत सारी मॉनिटरिंग गैजेट्स आ गए हैं, अब आपके पल्स ऑक्सीमीटर है, अब आपके पास है कैप्नोग्राफी सारा, लेकिन वो सिचुएशन है जब के सारे आपका मॉनिटर फेल हो गया है, आपने फटाफट स्टेथ अपनी चेस्ट पे रख लेनी है, उस पर टेप लगा देनी है, और पल्स पे आपने उंगली रख लेनी है। ठीक है, तो आपकी जगह टॉप क्लास मॉनिटरिंग होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, रेस्पिरेशन भी, वेंटिलेशन भी, और कार्डियक भी मॉनिटरिंग हो रही है, और साथ पल्स भी मॉनिटर हो रही है, और पल्स वॉल्यूम भी आपको फील हो रहा है, और आप साथ जो है स्फिग्नोमेटर मैनोमीटर लगा लें और असिस्टेंट को कहें कि ब्लड प्रेशर नोट करके मुझे बताते रहो, और पल्स वॉल्यूम से आपको उसका वो पता चलता रहता है। ठीक, दिस इज फॉर दी पेरिफेरल, जो पेरिफेरी में जो आप जब काम कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स आपके पास मॉनिटर नहीं होता, या उस तरह से जो फील्ड में आर्मी के डॉक्टर्स हैं वो जब काम कर रहे होते हैं, तो वो ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पे इस तरह के सोफिस्टिकेटेड किस्म के मॉनिटरिंग इक्विपमेंट नहीं होते हैं, या समटाइम्स आप किसी प्राइवेट सेटअप में जहाँ पे सिंपल सिर्फ पल्स ऑक्सीमीटर है, तो आप उसमें जो है वो बाकी चीज़ें नहीं है, तो उसमें आप इस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। बच्चा है, बच्चे में मॉनिटर्स लगाना बहुत मुश्किल होता है, पर उसके काफ़ी नहीं होते हैं आपके पास। ठीक है, तो उन बच्चों में फिर आप जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड टाइडल नहीं होती है, अक्सर जगहों पे नहीं होती है, तो वेंटिलेशन को आपने मॉनिटर करना है। अगर वो उसमें आप हार्ट के ऊपर जो है स्टेथ को टेप कर लेते, तो वो आप वेंटिलेशन और कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग दोनों कर सकते हैं। ठीक है जी। जी अच्छा जी, जो है ना सीवीपी लाइन, उसकी जो वेव फॉर्म्स हैं, उस पे बड़े जो है एमसीक्यूज आते हैं, तो याद रखने का तरीका जो है ना वो ये है कि ACV, ए फॉर एट्रियल कंट्रैक्शन, सी फॉर कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, और वी फॉर वीनस फिलिंग ऑफ एट्रिया। ठीक है, याद रहेगा ना, एट्रियल कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल, सी, और वी वीनस फिलिंग ऑफ द एट्रिया। ठीक है, और एक्स डिसेंट जो है वो जो है ट्राइकस्पर्ड जो मूवमेंट है वो है, और जो वाई डिसेंट है वो एम्पटिंग ऑफ द एट्रिया है। ठीक है, तो ये जो है ना, और उसमें जो कैनन वेव्स हैं वो आ जाती हैं कि एट्रियल फिब्रिलेशंस में, और ट्राइकस्पर्ड जो अ, उसमें रिगर्ज में, और जंक्शनल रिदम में आ जाती है कि वो किन किन कंडीशंस में आती है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है
इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है अच्छी तरह से, और इसकी कोऑर्डिनेशन विद दी जो है वो जो ईसीजी है और जो आर्टीरियल वेव फॉर्म है, आर्टीरियल वेव फॉर्म को आपने देख लेना, उसमें डैम्पिंग वगैरह को आपने जरूर देख लेना है, ओवर जी सर, डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग। हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट्स ऑफ दी जो है ना ये जो आर्टीरियल लाइन है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसड्यूसर है, और जो है नॉन कंप्लायंट जो है वो ट्यूबिंग है, आगे कैथेटर, इंट्राट्यूब कैथेटर, और वो जो है और उसके साथ जो है ना प्रेशर ऊपर सोर्स है जो उसके साथ लगा हुआ है, और उसको किस तरह से आप बबलिंग उसकी कैसे बबल कैसे रिमूव करते हैं, और बबल कैसे रिमूव करते हैं और फिर उसको फ्लश कैसे करना है आपने, ये है ना इम्पोर्टेंट है। और इसमें बस यही है। थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन डॉक्टर बख्श, provided you were well in time, and you prepared well. Slightly you were sighing, गहरे सांस ले रहे थे कि शायद you were being overburdened। सर, ठीक है, तो gentlemen, you should not get deep sighs, this shows stress। ठीक है, तो जी ये सर। but excellent presentation, very सर good। एक्चुअली प्लेटफॉर्म ये बहुत काफी अच्छी है। इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, और मेरे पास जो है ना, थैंक यू सर, टाइम थैंक यू। मेरे ख्याल आपको टाइम थोड़ा कम दिया गया है आपके पास, मेरे ख्याल प्रेजेंट किसी और ने करना था लेकिन आपको फिर ये टॉपिक दे दिया गया, लेकिन यू प्रेजेंटेड वेरी वेल माशाल्लाह, और आई कैन कांग्रेचुलेट यू फॉर दिस एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, और आई थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू माय दिस लॉन्ग डिस्कशन। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक थैंक यू यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर आपकी बड़ी अच्छी बातें होती हैं, मतलब जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सर ने की है कि प्रेजेंस ऑफ द एनेस्थेटिस्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द ओटी। इसके बगैर जितनी मर्जी मॉनिटरिंग कर लें उसका कोई फायदा नहीं। और सर किसी ने कोई चीज ऐड करनी हो, सर तनवीर, सर एनी कमेंट फ्रॉम योर साइड? Yes, just 1 minute. यस सर, श्योर सबसे श्योर। पहले मैंने यार लेट ज्वाइन किया है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ये जो प्रेजेंस ऑफ एनेस्थेटिस्ट इन द ओटी जो है ना, ये मेरा ख्याल है हम जो जो डिस्कस करते हैं ना, ये कहीं दुनिया में तस्वुर भी नहीं है कि सर्जरी चल रही है और एनेस्थीसिया का जो डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है, वो आउट ऑफ ओटी है। यानी ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। मीन इसे मैं दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इवन अगर लोकल एनेस्थीसिया में भी सर्जरी हो रही होती है तो प्रेजेंस ऑफ एनेस्थेटिस्ट इज स्टिल मैंडेटरी। ठीक है, तो सर ये ये हम मिनिमम स्टैंडर्ड है। हाँ जी। मिनिमम मतलब इसका ये आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाँ जी सर। इट्स क्रिमिनल, वेरी जी सिंपल। यानी ये जी। पाकिस्तान में तो हम इसको कह देते हैं ना जी, वो डिस्कस हम ये टॉपिक डिस्कशन का भी नहीं है। यानी कि उसकी प्रेजेंस जो है एनेस्थेटिस्ट की, वो इवन इन लोकल एनेस्थीसिया में भी कुछ जगहों के ऊपर बाय लॉ मैंडेटरी है। तो बाकी जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल, इनके तो आप बिल्कुल ही ये जस्ट इसको ना स्ट्रेस करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 5 साल मैंने दुबई में काम किया है। मैंने कभी यानी तस्वुर नहीं किया, कभी मैंने नहीं देखा कि एनेस्थेटिस्ट बाहर आया हो, क्योंकि बाय लॉ ये था कि अगर कोई थोड़ी सी देर के लिए ऐसे फोन अटेंड करने भी गया है ना, तो वो साइड वाला जो रूम होता है ना जहाँ इक्विपमेंट वगैरह थोड़े, वहां तक भी आप नहीं जा सकते होते बेसिकली। यानी अगर आपको कोई रिपोर्ट कर दे तो ये बड़ी एक्सप्लेनेशन और बड़ी ये हो जाती हैं चीजें। लिहाजा प्रेजेंस इसलिए यार जरूरी है कि कोई भी चीज रॉन्ग जाएगी, आपने फौरी उस पर रिएक्ट करना है। और हमारे यहाँ देखिए कितने केसेस हुए हैं मुल्तान में, जब हम ट्रेनिंग में थे, कि जी वो डिस्कनेक्शन हो गई, आसिफ कौमा केस हो गया, और जी फाखरा केस हो गया अपना। तो ये चीजें इसलिए होती हैं कि टाइमली वो पिक नहीं होती, और टाइमली पिक एनेस्थेटिस्ट ने करनी है। उसकी प्रेजेंस, उसकी एब्सेंस इज आउट ऑफ क्वेश्चन, वेरी सिंपल। तो ये मेरा ख्याल है पूरे जो हमारे कम्युनिटी है एनेस्थीसिया, उन सबको ये पता होना चाहिए और इसकी वो केयर करें कि वो कभी पेशेंट ना छोड़ के जाएं बाहर। एग्जैक्टली। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।
थैंक यू सर। सर आमिर, मजीद सर आपकी तरफ से कोई चीज? जी अरसलान, ये चीज़ें तो कवर कर ली काफ़ी सारी, बख्श ने भी और डॉक्टर साकिब ने काफ़ी एलेबोरेट भी कर दिया जो कुछ पॉइंट्स वीक थे, तो दैट्स गुड वन। अब उसमें बेसिकली अगर आप देखें ये जो मॉनिटरिंग है हमारी, तो ये अभी आज की इस वीक में हमारा जो टॉपिक था वो कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग था। तो अगर हम मॉनिटरिंग को वेट आउट करें तो मे बी 70% जो मॉनिटरिंग है दैट इज रिलेटेड टू कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियोवास्कुलर मॉनिटरिंग ही आपकी मेजर बल्क होता है उसमें मॉनिटरिंग में, और उसकी बेसिक मॉनिटरिंग है, जैसे आपका हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है और ईसीजी है, ये वो बेसिक मॉनिटरिंग है जो जो है ना कंडक्ट ऑफ एनेस्थीसिया की, जिसको एसेंशियल मॉनिटरिंग हम कहते हैं। तो इस पे अवेयरनेस जो है वो डेफिनेटली एक एनेस्थेटिस्ट की जो स्किल है उसको इनहेंस कर दी है, तो इसमें डेफिशिएंसी तो नहीं होनी चाहिए। इसमें फर्दर भी हमारी चलेंगी चीज़ें, उसमें जैसे डॉक्टर साकिब साहब के साथ हमारी कमिटमेंट है तो वो ईसीजी के ऊपर एक डेडिकेटेड जो है वो लेक्चर देंगे, तो होपफुली हम जो है ना अगर नेक्स्ट वीक में ही वो कर लें तो दैट इज ब्लेसिंग के इसी के साथ हो जाए। अगर वो उससे थोड़ा आगे पीछे भी करने जाए तो जो ही वो हमें कहेंगे तो हम उनके लिए उनको एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह हम जो है जो अदर जो आपकी मॉनिटरिंग के स्लॉट्स हैं उसको भी इस तरह से इन डिटेल टच करने की कोशिश करेंगे, तो ताकि हमारी जो ये जो ग्रिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो जाए। मजीद कोई क्वेश्चन हो किसी का, कोई कमेंट हो तो फिर उसके साथ ले लेते हैं। जी अरसलान। जी सर, फिलहाल तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी की तरफ से। सर प्रेजेंटेशन मैंने इतनी आला दिया ना कि किसी का कोई नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन अच्छी थी। क्वेश्चन ना होने की ना दो रीजन होती हैं, या तो सब कुछ समझ में आ गया है या किसी की कुछ या समझ फिर कुछ भी समझ कुछ नहीं आया। समझ नहीं आया। और ये भी होता है कि मेरे साथ तो मेरा ख्याल है मैंने ना सबके कॉन्सेप्ट खराब कर दिए प्रेजेंटेशन। चलो नहीं नहीं, एनीवे अब तो हो गए भाई। सर तनवीर कुछ कहना चाह रहे हैं सर? एक्सीलेंट, माशाल्लाह। ये थोड़ी बहुत हंसी खुशी भी होनी चाहिए। गुड। मॉनिटरिंग में यार ऐसा है कि मॉनिटरिंग ना बाय लॉ मैंडेटरी है। उसकी रीजन क्या है मैंडेटरी कि फॉर एग्जांपल हम एक सेक्शन करते हैं जी, वो फाइनल दिया, उसके बाद ईसीजी लग रही है, फिर स्लोली कोई पल्स ऑक्सीमीटर अटैच कर रहा है। ऐसा नहीं है। बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया सारी मॉनिटरिंग पहले लगी होनी चाहिए। और ये क्यों जरूरी है मॉनिटरिंग? फॉर एग्जांपल आप कॉन्फिडेंट हैं, आप केस कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, ईसीजी फॉर एग्जांपल मिसिंग है, यू कैरी ऑन विद दैट। इशू ये है कि कोई भी जो वर्क प्लेस है ना, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल होता है उसका। तो ये सारी चीजें एक साइकिल में चलती हैं कि ऑडिट चल रहा होता है। आप केसेस आपने किए हैं, एक हॉस्पिटल में हुए हैं 100 केसेस, वो उनको देखते हैं कि उसमें कहीं फॉल्ट तो नहीं है। अगर फॉल्ट है तो उसको करेक्ट किया जाए, और अगर कोई उसमें प्रॉब्लम हुआ है तो उसको देखा जाए। तो मॉनिटरिंग का होना कानूनी तौर पे जरूरी है। एनेस्थीसिया की जब प्रैक्टिस होती है तो उसमें प्रेजेंस ऑफ मॉनिटरिंग जो कि एज ए एविडेंस मौजूद हो, ये लॉ है, ये कानून है। जिस तरह आपकी कार के इंडिकेटर ठीक काम कर रहे हो जब आप रोड पे जाएं, उसका टायर ठीक हो, जरूरी नहीं है कि वो कार आपकी जो है ना वो कोई ना देखे, ये कानूनन जरूरी है। तो जब तक आप जहन में ये नहीं बिठाएंगे ना कि मॉनिटरिंग एनेस्थीसिया की बाय लॉ मैंडेटरी है, पाकिस्तान में भी और दुनिया में जहां भी पेशेंट स्लीप में होता है उसकी मॉनिटरिंग ऐसी कि जो एज ए एविडेंस उसके रिकॉर्ड में नजर आ रही हो, वो लॉ बाय लॉ नीडेड है। इसमें मैं ये ऐड करूंगा। अब क्लियर हुई ये बात? ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, क्लास को एंड कर दे सर यहाँ पे। सर साकिब ने इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे नेक्स्ट। सर से मैं कोऑर्डिनेट भी कर लूंगा। हाँ जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ जी सर साकिब। हाँ जी, अनम्यूट किया मुझे? जी सर अनम्यूट है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर तनवीर, आपको देख के बड़ी खुशी होती है, आप इतनी दूर से हमारे साथ
हम गरीबों की तरफ देखते रहते हैं, तो इससे बड़ा जो है ना वो खुशी होती है कि यार कोई बाहर से पीछे की तरफ ही को देखता है, बाकी तो लोग आगे की तरफ ही देखते हैं। तो thank you so much for joining us and encouraging young people with your good thoughts and with your experience। जो आप दुबई का एक्सपीरियंस का आप लगता है काफी ज्यादा आप असल में उससे इम्प्रेस्ड हैं। तो असल बस में यार मैंने इस जो वजह हम लोग जो है ना, हम लोग तो हैं फील्ड के लोग हैं ना, तो हम हमारे पास हर किस्म की सिचुएशंस हैं। वो आप जो है ना हाई फाई किस्म के उसमें हैं, तो हम फिर वो हमने उस सारी चीज़ों को जो है ना वो हाईलाइट करना होता है कि जो ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पे मॉनिटर नहीं होगा, फील्ड में है, तो आपने उस वक्त किस तरह से पेशेंट को मॉनिटर करना है। आप स्ट्रेचर पे पेशेंट को लेके भाग रहे हैं, पेशेंट शॉक में है, ठीक, वॉर सिचुएशंस हैं, ट्रॉमा ट्रॉमा पेशेंट्स हैं, आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस वक्त कैसे आप हेमोडायनामिक मॉनिटरिंग करेंगे। तो सारी चीजें जो हैं द पीजी शुड नो दैट दे आर अंडर ट्रेनिंग एंड the future emergency specialists and they maybe future field specialists और उसमें जो आर्मी के यूनिट्स में they will be there और उस तरह से। और तो उसमें जो है ना एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, ट्रॉमा सेंटर्स, जहाँ पे आप यू आर रनिंग विद द स्ट्रेचर एंड गेटिंग टू द मॉनिटर, बिफोर मॉनिटरिंग हाउ यू विल मॉनिटर द पेशेंट, कि वो उसकी जो है ना किस तरह से वो पल्स चल रही नहीं चल रही, ऑन द वे रेस्ट तो नहीं होगी कहीं। तो दैट्स व्हाई वो सारी बेसिक से ऊपर तक जो है ना वो, हाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपरेशन थिएटर मॉनिटरिंग, तो दैट इज एक्सीलेंट, ऑल राइट। और ये जो है ना हमारे यहाँ एक और कल्चर जो है, वन पेशेंट वन एनेस्थेटिस्ट नहीं है। ये आप जो है ना मे बी हो, लेकिन हमारे बाद सेटअप्स में वन एनेस्थेटिस्ट 4 ऑपरेशन थिएटर चल रहे हैं। तो फिर सही है। हाँ, आप तो फिर कंटिन्यू करें, फिर इसमें मैं ऐड करता हूँ। तो डॉक्टर तनवीर, आई विल नॉट से सर, क्योंकि यू माइंड है कि सर कहना, लेकिन आप लोग ही बरतानवी छोड़ के गए हैं, ये सर का लकब हमें दे के गए हैं और फिर हम ये उसके ऊपर स्टिक कर गए, ठीक है। वो हमने कहा कि आप पुराना था लोगों ने ये, सर। हाँ जी, अच्छा। तो डॉक्टर तनवीर, ये जो है ना ये हमारे यहाँ ये कल्चर है कि जी एक एनेस्थेटिक 4 थिएटर चला रहा है, ठीक है। तो अमेरिका में भी ये है कि अब कंसेप्ट ये है कि एनेस्थीसिया असिस्टेंट्स जो हैं दे आर गिविंग प्रोवाइडिंग द एनेस्थीसिया सर्विसेज। तो पूरे एनेस्थेटिक्स पूरे नहीं हो रहे, शॉर्टेजेस हैं, एनेस्थीसिया में लोग आने नहीं चाहते कि वो एचआर नहीं है, ठीक है, और उसमें पीआर नहीं डेवलप होती और वो सारी चीजें। तो फिर ये है कि एक एनेस्थेटिस्ट है और वो ही इज लुकिंग आफ्टर 4 ऑपरेशन थिएटर्स, तो वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आएगा तो फिर क्या करेगा, ठीक है ना। तो ही हैज टू हैव ट्रेन्ड एनेस्थीसिया असिस्टेंट्स, और वो उसको जो है ना हेल्प करेंगे, और ही विल इंड्यूस द पेशेंट एंड देन ही विल बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ रिकवरी, और ही विल लुक आफ्टर दी जो है ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो, और वो उनको चक्कर लगाता रहेगा और देखता रहेगा और वो सारी चीजें। और आजकल फिर सेंट्रल मॉनिटरिंग आ गई है, सेंट्रल मॉनिटरिंग आप लगा लेते हैं सामने और यू आर सिटिंग और यू आर सारी आपके पास मॉनिटरिंग आ रही हैं और आप वहां पे देख रहे हैं कि जैसे किसी जगह पे गड़बड़ होती है, यू जस्ट फ्लाई टू दैट थिएटर और आप उसको जो है ना देख लेते हैं। सही है। डॉक्टर तनवीर, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? हाँ हाँ जी, बिल्कुल। मैं डॉक्टर साहब के फिनिश्ड, थैंक यू। सबसे पहले ये कि बड़ा मजा आता है आपकी बात सुन के, ब्यूटीफुल, अच्छा लगता है, और आपका माशाल्लाह नॉलेज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ऐसे है कि जब आप एक बुक पढ़ते हैं ना, जैसे हम डिस्कस कर रहे होते हैं, एक बुक में है, ये है एक एक ग्रॉस नॉलेज। इसको सर हर मुल्क, हर हॉस्पिटल और हर सेटअप ना अपने हिसाब से ना अपनी वो गाइडलाइन पॉलिसीज बना लेता है जो कि हॉस्पिटल की होती है, जो कि मेरे लिए भी नई चीज थी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुबई मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ सबसे पहले आपको महीना वो कहते हैं कि आप साथ साथ काम करें, और वो आपको एक पेपर वर्क दे देते हैं
वो आप साथ साथ उसे साइन करते रहते हैं। और वो एक तरह की, जिस तरह हमारे यहाँ कानून होता है ना, इसी तरह कानून की किताब, तो वो आपके लिए पूरी कानून साजी हो रही होती है कि आपको प्रिविलेजेस सारे उसमें लिख के दे दिए जाते हैं कि आप बीइंग स्पेशलिस्ट सेंट्रल लाइन इंडिपेंडेंट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, इस पे होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक ये कानून था कि जी स्पेशलिस्ट जो है 5 साल से जो छोटा बच्चा है वो इंडिपेंडेंट नहीं केस कराएगा और कंसल्टेंट होगा। ये अब उस अस्पताल का कानून है, उसको आप नहीं तोड़ सकते। इसी तरह ये कानून है कि इवन इन लोकल एनेस्थेटिक, अगर आई की कैटरेक्ट सर्जरी हो रही है ना, एक दिन मेरी लिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो कैटरेक्ट में मैं वहां बैठा हूँ, वो लोकल लगा रहे हैं, लेकिन वो कानून है, उसको मैं वो रूम नहीं छोड़ के जा सकता, मैं उसमें मैं रहूंगा। इसी तरह टॉन्सिलेक्टमी, सिजेरियन सेक्शन, उसमें क्या क्या होना है, तो वो हर चीज उसमें लिखी हुई थी, प्रोटोकॉल उसके बने हुए थे। अगर आपने किसी प्रोटोकॉल से डिविएट किया है फॉर एग्जांपल, और थोड़ा बहुत कोई लॉस हुआ है पेशेंट का या पेशेंट को, तो आप क्वेश्चनेबल हो जाएंगे कि ये हॉस्पिटल का पॉलिसी थी, आपने क्यों वायलेट किया इसे। तो आपको उसका बड़ा यानी कि जवाब देना पड़ जाएगा। तो इसी तरह ये मैं बता रहा हूँ कि आप 1:4 इवन 1:10 रेशो बेशक एनेस्थीसिया की रख लें, लेकिन वो उस मुल्क के हिसाब से उसकी कानून साजी होती है। मसलन आप सीएमएच में काम करें, सीएमएच अपना प्रोटोकॉल बना लेता है कि 1 एनेस्थेटिस्ट विल बी कवरिंग 4 ओटीज, और वो साइन हो जाता है आपका इंस्टीट्यूशन के हेड से, हॉस्पिटल के हेड से। अब वो कानून बन गया है सीएमएच का। मैं इसलिए अपने मुल्क के हिसाब से कानून बना लें। एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि 2-3 ब्रेन डेड पेशेंट थे आईसीयू में। अब हमारे तो फौरन ज़हन में आता है यार अब आईसीयू ब्रेन डेथ है, अब आप इसका वेंट बंद करें और फैमिली को काउंसिल करें। लेकिन भाई आपको पता चलता है कि यार ये यूएई के कानून में है, इस मुल्क के लॉ में है कि जो ब्रेन डेथ है या जो कुछ भी है, आप उसकी जो लाइफ सपोर्ट है नहीं एंड कर सकते। उस वो मुल्क का कानून है, यू कांट डू एनीथिंग। आप यू हैव, आप उसको ऑफर भी नहीं कर सकते उनकी फैमिली को, बिकॉज लॉ ऑफ द कंट्री इज डिफरेंट। तो मैं थोड़े से बड़े प्रोस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ। तो हम ठीक है अपने जो टेक्नीशियंस हैं, या अगर उसकी कानून साजी कर लें अपने हॉस्पिटल्स की पॉलिसी के साथ, तो देन इट विल बी अ लॉ, अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड। और इस तरह की चीजें मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं पाकिस्तान आऊंगा ना, शेयर आपसे करूंगा। आप हैरान होंगे कि पूरी की पूरी एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस जो है ना, एक एक प्रोसीजर की वो अलग गाइडलाइन बन के साइन हो के ऊपर से नीचे तक वो इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस थी। उससे राइट लेफ्ट आप नहीं कर सकते थे। कभी कभी आपको अगर करना पड़े ऐसी सिचुएशन में, तो आप यानी कि उसे एक्सप्लेन करते थे कि मैंने ये इसलिए इसे बाईपास किया इस चीज को, कि इसकी इसलिए जरूरत थी। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने लर्न किया है, तो वही मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि बस वो कानून बन जाती है हर चीज ना। जी साकिब भाई। थैंक यू सर। तनवीर भाई बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रिसलान जी टाइम सर। मेरा हो गया है, बस जी सर, वो 1 आवर हो गया। जी सर। एक बात करके बस इंशाल्लाह खत्म करेंगे। डॉक्टर तनवीर, एक बार ना एक डॉक्टर ने ये कहा कि जी मैं ना आज सिर्फ एक पेशेंट को मैं एनेस्थेटाइज करूंगा और उसके साथ रहूंगा, और बाकी ओटीज में जब मैं वहां पे जाऊंगा तो फिर एनेस्थेटाइज करूंगा, फिर साथ बैठूंगा। अच्छा, उस दिन जो है ना वो 11 बजे रात को बड़े थके हुए घर में गिरते पड़ते पहुंचे। वो बेगम ने पूछा कि आज क्या हुआ, आज आप बहुत थके हुए हैं, आज आप लेट भी बहुत आए हैं। उन्होंने कहा कि आज मैंने हॉस्पिटल एसओपी को फॉलो किया है। ठीक है। बट ठीक है सर, इन रियलिटी यू ठीक हैव है टू सर। फॉलो दैट। ये उस रियलिटी है हिसाब सर। से वो वहां वो चीजें बनी हुई थी। देखें, मैं आपसे शेयर करूंगा ना उनकी पॉलिसीज, और कुछ उसके ना कॉपीज हैं मेरे पास। उनसे राइट लेफ्ट आप कुछ नहीं कर सकते थे, सादा बात। जी सर। व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा।
तो ओके, थैंक यू डॉक्टर अरसलान। हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया और आप अभी कुछ कहना चाहते हैं या डॉक्टर आमिर फुरकान कुछ कहना चाहते हैं तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ सारों को, जी गुड जी नाइट। ठीक है बस सर, मेरा ठीक है सर, बस अब टाइम अप हो गया तो बस 1 आवर का ही टाइम है इंशाल्लाह। हाँ जी, थैंक यू ऑल थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स। इंशाल्लाह सर नेक्स्ट क्लास में सर आप ईसीजी पे इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन होगी सर। जी हाँ थैंक यू इंशाल्लाह, सर, तो थैंक यू फिर सो मैं मच। थैंक यू आपसे सर, कोऑर्डिनेट कर ठीक लूंगा है सर, इंशाल्लाह। ठीक है ओके, सर, अल्लाह ठीक है सर, थैंक ओके यू सर, डॉक्टर साकिब, थैंक यू वेरी मच, बाय। हाफिज़। थैंक यू ओके, सर, Thank you, अल्लाह थैंक sir. यू हाफिज़। एवरीवन, Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू।